जो खाली है चले जाइए ना किनारे पे। आज आचार्य प्रशांत जी का सेमिनार अटेंड करते हुए एम्स ऑडिटोरियम में देखिए कितनी क्राउड है। Good afternoon to the respected faculty, distinguished guests, students, and members of the AIMS Raipur community. Few institutions reflect disciplined inquiry, scientific thinking, and a commitment to nation building as strongly as AIMS Raipur. It is therefore a privilege to host a thinker who inspires us to question assumptions and engage deeply with life's fundamental concerns. Acharya Prashantji is a contemporary philosopher, author, and public intellectual known for his clarity and fearless pursuit of truth. With over 160 books, including the bestseller Truth Without Apology, his work challenges conventional thinking and encourages honest self reflection. Through his writings, talks, and digital presence, he reaches millions worldwide. Today, we are honored to host him here at AIMS Raipur. On behalf of the AIMS Raipur community, I extend a warm welcome to Acharya Prashantji. We look forward to an insightful and thought-provoking. Thank you, sir. I request sir to take a seat in the auditorium and enjoy today's discussion. I now call upon the panel to take their seats on the dais. Us. And I'm definitely sure a lot of people here don't even know the full thing. They know gay, they know lesbian, they might know transgenders, but they don't know Q, they don't know I, they don't know A. And for my personal experience, I have friends who belong to this thing also. I have a trans friend, I have a gay friend also. And I'm quite comfortable with this thing, but I also know people who doesn't even want to talk about it. Not knowing one thing is a different thing, but not want to know one thing is extremely different thing. There are people who don't even want to think about it, listen about it. Being comfortable and uncomfortable with this thing is another thing. So the accept, how can we let people understand this thing and be okay with this thing, or maybe accept this thing, not ignore it, or not with like EU with this thing or cringy like that. How can we get the acceptance? Uh, Even acceptance is not really needed. We are talking about alternate gender identities here. Who is any person to even accept, let alone reject? Uh, Somebody on the basis of gender identity or sexual orientation. There has to be a silent there has to be a silent and dignified, if I may say, indifference. As we sit here to discuss. We are attention.
we are dignity, we are consciousness, we are listening. How does it exactly matter what the gender constitution of the audience is, or for that matter, that of the panelists or the speaker? As I speak to you all, I don't want to be accepted on the basis of anything that is not relevant to consciousness itself. No, don't pay attention to anything else. Pay attention to the words and whether they elevate you from within. That's all. And the same thing applies to the panelists here. As you come over here, it would be pretty odd and not at all dignified of me to get into miscellaneous physical details, for example. There has been an increased incidence of violence against doctors. On an estimated around 75% increase was reported as per the Times of India. It takes a youth to become a doctor. It's not that easy. 12 plus years of experience, and after that also you are practicing. Like one of the reasons which I find is that hospitals today, they are acting as if they're businesses. And we as doctors are being portrayed as the selling agents. So is it one of the reasons for the violence against doctors? And if this is the case, then the same thing was happening years before also. This is not the first time. Hospitals were there, doctors were there, but why the violence cases are increasing nowadays? What's the reason for that? And again, my point would be, it takes a youth to become a doctor, and still if all these things are happening, why would anyone go to this stream? And especially like, it's not just about earning money. I would say medicine, like you can get better options like much more money in other streams for the amount of hard work which you have to put in. You have to go for 72 hours of shifts. And even after that, if you are being a part of that violence, then what's the logic behind this? And why are people not understanding all these things? See, there is a general, all-pervasive cynicism. Sacredness has stopped meaning anything. Nothing is outside the shadow of doubt, and very cynical doubt. Nobody is supposed to be taken as selfless. So if you're a doctor, it is assumed that you are working for petty, selfish motives just as anybody else. Just as anybody else. It has become unfashionable to take anything, any institution, any professional, any person, any relationship as having even an iota of selflessness. So the doctor is just as good or bad as any shopkeeper. You are providing me health services. You are just a service provider. The barber provides me a service related to my body and charges me something. You too provide me a service related to my body and charge me something. That's the prevailing pop philosophy. And when that's the underlying philosophy, that shows up in the pop culture. So that's the culture. Sacredness is out of the window. You understand what is sacred? Sacred is that which is taken as beyond
the ordinary human tendencies, beyond the touch of ordinary human fallibility. That is what you call as sacred. The sacred is something you are not supposed to touch and malign. No, there is nothing sacred. No, not in the classroom, not in front of the professor. In your hostels, how do you refer to your senior doctors, professors? How do you refer to them? Fine, that's fine. We are supposed to be honest, huh? Sometimes. Okay, late 90s, IIT Delhi. कहाँ जा रहा है तू? कुछ नहीं जा रहा हूँ, मैं गुप्ता की क्लास में जा रहा हूँ. And then you want the commoner to respect you and trust you and give you the benefit of doubt. Even when somebody passes away, that won't happen. That won't happen. I getting this. भाई आज तो टंडन भड़क ही गया इस पे. And I'm still not distorting their surnames. There were distortions as well. Tandon could be Tunda. And that's how the budding professionals, these wannabe doctors, are referring to their professors. And when you want to be called Dr. Saab by the patients, will that happen? That won't happen. And that doesn't have to do with your hostel or the campus, that has to do with the overall social situation, the overall condition in the world itself. You don't feel like respecting even those who occupy the highest chairs. Look at the presidents of the world. Look at the one of the US. If they happen to enter your home, would you say, "Aiye sir, Dadaji, aiye." Like being aware, as you said, not everyone deserves to be respected. I totally agree with this. But is it right to showcase that? And like you compared, like you didn't compare, you were telling that the barber providing the services is as equivalent to as a doctor providing the service. But there's a marked difference between the two. Obviously there is. I was saying how the common man perceives it. Obviously there is. So, sir, the reason for loss of sacredness, can you please tell me, is it... You see, this is a very intangible and very ineffable thing, sacredness. You can't put it here on the table, like the mug here, can you? Show me sacredness. Sacredness can't be manufactured, sacredness can't be displayed as an object. Sacredness is visible only in the living radiance of a human being. You require more people who stay true to their core, even in the face of adversities. Those people are nowhere to be seen. It's a philosophical decline. The prevailing philosophy is you're not supposed to live truthfully. Please understand. You're supposed to live happily. And there is a dissonance there. You're not supposed to live truthfully. The highest ideal is not truth but happiness. In fact, let's conduct a survey. Ask people here, what do you want, happiness or truth? If there's a choice, if only one can be had, what do you want to have? And most people will say we want happiness. And अभी हम ऑडियंस से सवाल लेंगे. आप लोग हाथ उठा लीजिए प्लीज जिसके सवाल है. सवाल जो है थोड़ा पर्सनल है मेरे लाइफ में जो मैंने नोटिस किया तो उसको लेकर है
तो मैंने आपको बहुत बार ये बोलते हुए सुना है कि फिल योर लाइफ विद समथिंग ब्यूटीफुल, समथिंग ग्रेट, सो दैट गार्बेज डजंट फिल इट। तो मैंने ये चीज़ को जैसे अपने लाइफ में एक मोटो की तरह इस्तेमाल किया कि चलो जो भी मुझे अच्छा, सुंदर, बेहतर दिख रहा है मैं उसे अपनी लाइफ में लाऊंगी। तो टू एक्सप्लेन दिस मैं एक एनालॉजी लूँगी कि जैसे मैंने सोचा कि एक गार्डन है, लेट्स से माय लाइफ इज अ गार्डन एंड आई एम चूजिंग द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स जो भी मैं वहाँ पे लगा सकती हूँ। तो मुझे लगा कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, मैं वो सीख लूँ, लिटरेचर है मैं इसको लाऊँ, कोई स्पोर्ट्स है वो कर लिया। तो ये सब कर रही थी तो मुझे लग रहा है कि मैं डिसाइड कर रही हूँ खुद कि मैंने ये चीज़ों को लाया और अपनी लाइफ को बेहतर बना रही हूँ। पर एक चीज़ मैंने नोटिस की कि ये करते हुए भी कहीं ना कहीं मेरी नज़र ऐसे रह रही है, लाइक कॉर्नर ऑफ द आई में चेक कर रही हूँ कि कोई उसे देख रहा है या नहीं देख रहा है। और स्पेशली ये ऑपोजिट जेंडर के लिए रहता है कि इज एनीवन नोटिसिंग इट या नहीं। तो वो चीज़ मुझे लगता है कि अब तक मुझे लग रहा था ये बहुत सीक्रेट चीज़ है, मैंने अपनी समझ से डिसाइड करा कि इन चीज़ों को लाइफ में लाऊंगी, पर अल्टीमेटली लग रहा है वो निकला कि जो चीज़ पहले था, जैसे हम अगर कह लें कि कोई लिपस्टिक लगा रहा है, सज रहा है, धज रहा है, तो वो खुद के लिए बहुत एविडेंट होता है देखना कि मैं चलो सामने वाले को रिझाने के लिए वो काम कर रही हूँ, तो वो तो एविडेंट हो गया। अब मैंने ही डिसाइड करा कि नहीं, मैं इसको साइड में रखती हूँ, आई वॉन्ट टू फोकस ऑन माई लाइफ, उसे बेटर बनाती हूँ, तो जो अच्छा है, जो बेहतर है उसको करूँगी। पर अब लग रहा है कि ये चीज़ भी कहीं ना कहीं जैसे उसी चीज़ की कठपुतली बन के रह गई है। So I was not the one driving it, कुछ और ही है जो इसको भी इस्तेमाल कर रहा है for the same purpose in a way. So like अब मैंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें ले आई है अपनी लाइफ में, पर उनको भी मैंने ट्रॉफी की तरह वॉल में सजा दिया है कि देखो now do I look desirable, ये आ गया है मेरे पास, these are the qualities I have. So ultimately I still feel like a beggar, but now that I have a golden bowl maybe to attract better attention. तो ये चीज़ क्या है, क्या ये हर वक्त ऐसे ही रहेगा? और सिर्फ प्लीज हिंदी में जवाब दीजिए। बहुत सही है। जिंदगी को सुंदर चीजों से भर लो, पर सौंदर्य कोई भंडारगृह नहीं होता है। सौंदर्य कोई ट्रंक या कमरा नहीं होता है जिसको आप खूबसूरत, अच्छी अच्छी, लुभावनी, मनभावन चीजों से भर दोगे। आपने अपनी जिंदगी में जैसे अपने घर में एक कमरा आरक्षित कर लिया हो कि जगह जगह से ला करके इसमें आकर्षक चीजें भर दूंगी और इसको बोलूंगी द रूम ऑफ ब्यूटी। ऐसे नहीं होता सौंदर्य। सौंदर्य भी एक यात्रा होता है, और वो यात्रा सृजनात्मक विध्वंस की होती है। सृजनात्मक विध्वंस, सृजनात्मक विध्वंस का अर्थ होता है अगले चरण पर पहुंचने के लिए, ऊंचाई की यात्रा के अगले सोपान पर पहुंचने के लिए spirituality go hand in hand. कैसे बोलिए Sir, in today's time of artificial intelligence, हिंदी में बोलूं इंग्लिश में बोलूं? whichever. तो आप भी तो हिंदी में बोलिए ना। Sir, आज के जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टाइम में जो चिकित्सा विज्ञान है और स्पिरिचुअलिटी है वो कैसे एक साथ चल सकते हैं, क्योंकि इन और बस यही क्वेश्चन है। ये ऊपर लाइटें लटक रही हैं, ये और इस भवन की बुनियाद एक साथ कैसे चल सकते हैं? सही बात है। ये ऊपर से लटक रही हैं और बुनियाद तो जमीन की सतह के भी नीचे है, ये एक साथ कैसे चल सकते हैं? कैसे चल सकते हैं? ये एक साथ ही चलेंगे, और वो ना हो तो ये लटकेगा नहीं, ये गिर जाएगा, और गिरेगा तो बड़ा नाश करेगा, पता नहीं किसके सर पे गिर जाएगा।
अध्यात्म कोई क्षेत्र नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई विषय या ऑब्जेक्ट नहीं है कि आप कहो कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कैसे चलेगा। स्पिरिचुअलिटी माने विजडम, माने आत्मज्ञान, वो आधार है जिसके बिना इंसान पगला है। उसके बाद वो वहां से ये लाइट्स नहीं लटकाएगा, वो वहां से गन्स लटकाएगा कि मार देते हैं सबको। जो प्रश्न है उसके पीछे की मान्यता समझिए। इस प्रश्न में एक एजम्पशन है। एजम्पशन ये है कि विज्ञान की एआई या जो भी कटिंग एज टेक है वो भी एक फील्ड है और वो मॉडर्न फील्ड है, और स्पिरिचुअलिटी भी तो एक फील्ड ही है ना, फील्ड ऑफ नॉलेज, और वो एक एंशिएंट फील्ड है। तो इनका सवाल है कि ये दोनों फील्ड्स आपस में कंपैटिबल कैसे हैं, इन दोनों क्षेत्रों का आपस में समायोजन कैसे हो, ये इनका सवाल है। इस सवाल के पीछे की मान्यता ही गड़बड़ है। अरे भाई, अध्यात्म कोई क्षेत्र नहीं होता, क्षेत्र सारे बाहर होते हैं। ये एक क्षेत्र है, ये दूसरा क्षेत्र है, तीसरा क्षेत्र है। अध्यात्म मेरे बारे में होता है, मैं इन सब क्षेत्रों का ज्ञाता हूं। गीता में आता है क्षेत्र क्षेत्र के विभाग योग, सब क्षेत्र होते हैं। हाँ, ये एक क्षेत्र है, मेरे परिवार वालों के साथ क्या व्यवहार है वो एक क्षेत्र है, अपने व्यवसाय में कितना पैसा कमा रहा हूं वो एक क्षेत्र है, मुझे राजनीतिक मुद्दों की कितनी जानकारी है वो एक क्षेत्र है, मैं कुछ खेलता हूं, मैं कितना अच्छा खिलाड़ी हूं वो एक क्षेत्र है। एआई एक क्षेत्र हो गया, मेडिसिन एक क्षेत्र हो गया, ये सब क्षेत्र हैं। पर इन सब क्षेत्रों के बीच में तो मैं खड़ा हूं ना। घर में अपने माँ बाप से बात करने वाला कौन हूं? मैं। क्लिनिक में अपने पेशेंट से बात करने वाला कौन हूं? मैं। एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स में बातचीत करने वाला कौन हूं? मैं। कटिंग एज टेक्नोलॉजी का ज्ञान लेने वाला कौन हूं? मैं। बैडमिंटन कोर्ट पर प्रतिस्पर्धा करने वाला कौन हूं? मैं। अध्यात्म इस मैं के बारे में है, वो किसी क्षेत्र के बारे में नहीं है। सारे क्षेत्र मेरे चारों ओर हैं। उन सब क्षेत्रों के केंद्र में जो खड़ा है उसको जानने को अध्यात्म कहते हैं। सब क्षेत्रों को जानने को शास्त्रीय तौर पे कहा जाता है अविद्या। क्या कहा जाता है? अविद्या। अविद्या या अपराविद्या। और इन सारे क्षेत्रों के मध्य जो खड़ा हुआ है वो स्वयं को जाने, इसको कहा जाता है अध्यात्म या विद्या या पराविद्या। और अगर ये जो मध्य में खड़ा हुआ है ये स्वयं को ही नहीं जानता, और ये एआई भी जानता है, ये पॉलिटिक्स भी जानता है, ये हिस्ट्री भी जानता है, ये साइकोलॉजी जानता है, ये मेडिसिन जानता है, ये फलाना ढिमाका 100 चीजें जानता है, खुद को नहीं जानता, तो ये पगलू है। हाँ, ये बन के बहुत बड़ा बैठा होगा, बड़े अनुभवी हैं, हम 60 साल के हो गए, हमारे पास अब एक ऊंची गद्दी है, हम ये कहलाते हैं, वो कहलाते हैं, सबसे बड़े ऑफिस में बैठते हैं, पर तुम पगलू हो। जैसे कहते हैं ना कि बंदर के हाथ में तलवार आ गई है। वो बहुत कुछ जानता है पर जानने वाले को नहीं जानता है, तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि उसके निर्णय कहां से आ रहे हैं। जाके पूछो अमेरिका वालों से कि तुम क्यों लड़ रहे हो ईरान में, वो अच्छे से जानते हैं कि बम कहां गिराना है, वो अच्छे से जानते हैं कौन से बम वर्षक का इस्तेमाल करना है, वो अच्छे से जानते हैं किसके साथ अलायंस करनी है, वो अच्छे से जानते हैं कि टैक्टिकल लेवल पर जीत कैसे हासिल करनी है, वो सब जानते हैं। पर उनसे केंद्रीय बात पूछो, पर ये तो बताओ लड़ क्यों रहे हो? ये उनको नहीं पता। ये नहीं पता, उनको बिल्कुल नहीं पता। और बड़ा भारी अहंकार खड़ा हो जाता है, मैं तो सब जानता हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, और उम्र बढ़ती जाती है, पदवी बढ़ती जाती है, वो अहंकार और सघन होता जाता है।
मैं ये जानता हूँ, मैं वो जानता हूँ। तो अपने बारे में कितना जानता? तुम्हें पता है कि अगर अभी तुम्हारे भीतर ऊब उठ रही है तो क्यों उठ रही है? तुम्हें पता है तुम्हारे भीतर वितृष्णा उठ रही है, घृणा उठ रही है, या पसंद उठ रही है तो क्यों उठ रही है? तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम कह देते हो इंस्टिंक्ट्स हैं, इंस्टिंक्ट्स नहीं है, ईगो है। और वो कैसे काम कर रही है, उसकी व्यवस्था और संरचना के बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता, क्योंकि वो बात किसी किताब में लिखी नहीं जा सकती। लिख भी दी जाए तो काम नहीं आ सकती, क्योंकि उसको सिर्फ डायनामिकली जाना जा सकता है, रियल टाइम में जाना जा सकता है। जब हो रहा हो सिर्फ उसको तब देखा जा सकता है। नमस्कार, मैं गिनी जैन रायपुर से। मेरा प्रश्न जो है, उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने आपके बहुत सारे वीडियो देखे हैं जो विशेषतः स्त्रियों पर और उनकी डेवलपमेंट्स के बारे में, उनकी खुद के इनर स्ट्रीम्स को बढ़ाने के बारे में होते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश मुझे ये भी समझ में आता है कि हमारे भारत में, जहाँ पर हम इस सोच परिकल्पना को जीना चाहते हैं कि स्त्रियों का उत्थान हो, लेकिन यहाँ पर हर गाली स्त्रियों से शुरू होती है। बोलचाल की भाषा में स्त्रियों के लिए गाली होती है, और वहां से, घर से शुरू होकर बाहर तक जब हम बात करते हैं तो इन्हीं चीजों को पाते हैं। तो अजय जी, मुझे मतलब संदेह होता है कि ऐसे में एक स्त्री कैसे खुद के सेल्फ स्टीम को बढ़ा सकती है, क्योंकि जहां जा रही वो, घर में बाहर में, वही सुन रही है। इससे स्त्रियों के बारे में कुछ नहीं पता चलता। इससे तो जी, मैं आपके माध्यम से यही मैसेज सबको देना चाहती थी कि यहाँ बैठे हमारे भाई और पुरुष मतलब कैसे हमें आगे ले जाने में हेल्प कर सकते हैं। ये तो उम्मीद ही मत रखिए कि कोई और आपकी मदद करेगा। ना पुरुष ना ही स्त्री, कोई दूसरा आपको ऊपर नहीं उठा सकता। वो आपका अपना निजी स्वतंत्र सार्वभौम फैसला होता है, तो वो तो कोई दूसरा ही उठाएगा। ये धारणा भी कमजोरी का ही द्योतक है कि कोई और आकर के मुझे उठाए। कोई और ना आने वाला, ना उठाने वाला। हाँ, आप किसी की मौजूदगी का लाभ उठा सकती हैं, इतना हो सकता है। मैं आपसे कुछ बात कर रहा हूँ, मैं जो भी आपसे बात कर रहा हूँ, इसका लाभ उठाना आपके हाथ में है। अगर लाभ उठाया तो श्रेय पूरी तरह आपका है। ये कहने की कोई जरूरत नहीं कि मैंने आपकी मदद करी है। मौजूद तो मैं यहाँ पर इतने लोगों के लिए हूँ, आधे लोग अपने मोबाइल के साथ खेल रहे हैं अभी भी। तो अगर आपकी कुछ मदद हो पाती है तो श्रेय पूरी तरह से आपका है। ये कभी मत सोचिएगा, ये अबला मान्यता है कि मैं थी और कोई आया और मुझे अवतार की तरह, नायक की तरह सहारा दे करके उठाकर चला गया। ये नहीं कह रहा हूं कि मदद हो नहीं सकती, मैं कह रहा हूं मदद दी नहीं जा सकती। हाँ, जिसके भीतर उठने की जलती हुई इच्छा हो वो मदद ले सकता है, वो मदद ले सकता है। और अगर उसके भीतर इच्छा नहीं है तो स्थितियां मददगार भी हो जाएं तो भी मदद होगी नहीं। और जो उठना ही चाहता है वो साधारण स्थितियों में भी, प्रतिकूल स्थितियों में भी ऊपर उठ सकता है। ठीक है, अब आते हैं गालीबाजी पर। मैं नहीं करूंगा। स्त्रियों के जननांगों को पुरुष या समाज गाली की तरह इस्तेमाल कर रहा है, इसमें स्त्रियों के बारे में क्या पता चलता है? कुछ नहीं। इससे तो यही पता चलता है कि पुरुष बहुत परेशान है, उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा जिंदगी में। वो एक बोझ लेकर के जी रहा है, वो अपनी ही कामुकता का मारा हुआ है। आप सिर्फ उस क्षण की बात कर रही हैं जब उसने गाली दे दी। गाली तो उसने दिन में 2-4 बार दे दी होगी, पर वो बोझ तो 24 घंटे उसके सर पर मौजूद है ना। लगातार वो बोझ मौजूद है, और जब भी मौका मिलता है तो बोझ फूट पड़ता है।
जैसे ज्वालामुखी है, वो उबले जा रहा है, विस्फोट कभी कभार ही होता है। पुरुष चूंकि महिला के साथ स्वस्थ संबंध कभी बना नहीं पाया, इसीलिए महिला उसके लिए, स्त्री उसके लिए एक पहेली जैसी रह गई है। फिर वो उसको कभी माया बोलता है, कभी नरक का द्वार बोलता है, कभी बोलता है इसका क्रिया चरित्र है, कुछ समझ में नहीं आता। कभी बड़े बड़े विद्वान बोल देते हैं कि स्त्रियां भरोसे के लायक नहीं होती हैं, इनसे चीजें छुपा कर रखो। कभी कोई बोल देता है नहीं, इनको दबा कर रखो। कभी कोई ग्रंथ बोल देता है कि इनको तो सदा आश्रित ही होना चाहिए, कभी पिता के, कभी पति के, कभी पुत्र के। 100 तरह की बातें हैं जो उनके बारे में बोल दी जाती है। इससे स्त्रियों के बारे में कुछ नहीं पता चलता, क्योंकि ये बातें स्त्रियों ने नहीं बोली हैं। स्त्रियों ने बोली होती तो हम स्त्रियों से पूछते कि काहे को बोली भाई तुमने, पर उन्होंने तो बोली ही नहीं है। बोली किन्होंने? बोली पुरुषों ने, वो परेशान है, उन्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा। और समझा जाता है प्रेम में जहां पर भावना शोषण की हो, दमन की हो, पोजेशन की हो, छा जाने की हो, जहां मानवता का लगभग समूचा इतिहास ही पितृसत्तात्मक रहा हो, वहां आधी मनुष्यता को समझ पाना संभव ही नहीं हो पाया है।